this is a video about nucleus. Nucleus was discovered by Robert Brown. No, he saw a rounded body in the root cells of orchid, which was named as the nucleus. And the nucleus shape, it varies in different cells. It can be oval, it can be spherical, it can be lobed, it can be kidney shaped, no, the shape it varies, no, it can be oval in shape, it can be spherical, no, it can be lobed. These are the lobes of nucleus, or it can be kidney shaped. So you have a variety of the shape of the nucleus. These are different shapes of the nucleus. Fine. Then generally we have one nucleus per cell, but the number of nuclei may be more than one per cell. Say for example in Paramecium. In Paramecium there are 2 nuclei per cell. Then if you talk about the striated muscle fiber, muscle fiber is a cell, it has many nuclei per cell, and the nucleus may be absent in a cell. For example in RBCs do not have nucleus at maturity. When the RBC are formed, they do have nucleus, but when the RBCs they become mature and the nucleus is lost. Similarly, the sieve tubes sieve tubes are a part of phloem. They also do not have a nucleus at maturity. So sieve tubes also have initially nucleus, RBC also has nucleus, but when they undergo maturity, then they lose their nucleus. So generally we have one nucleus per cell, but some cells may have more than one nuclei and there are cells which do not have nucleus. And then if you talk about nucleus at interphase, that this diagram is of a nucleus which is at interphase. Interphase nucleus का मतलब है when the cell is not dividing, non-dividing cell, right? When a cell is not dividing, the nucleus is said to be in a interphase. So हम अगर बात करें एक interphase nucleus की, interphase nucleus का मतलब है the cell is in a non-dividing state. Cell जो है वो divide नहीं कर रहा, cell is at rest, that is called interphase. So अगर हम interphase में nucleus को देखें, right? So the nucleus, it has a fluid like substance. न्यूक्लियस में आपको एक फ्लूइड
लाइक सब्सटेंस नज़र आएगा. दिस फ्लूइड लाइक सब्सटेंस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, राइट. सो न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के बाहर सेल हैज साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर द फ्लूइड लाइक सब्सटेंस इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोप्लाज्म. और न्यूक्लियोप्लाज्म में what you will see is the chromatin. In the nucleoplasm is present chromatin, or we can say chromatin material. This chromatin material is nothing but it is your genetic material, which is made up of DNA. So in the interphase nucleus, when the cell is not dividing, तो इंटरफेस न्यूक्लियस में आपको न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म दिखेगा, और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर द जेनेटिक मटेरियल इज देयर विच इज कॉल्ड एज chromatin. This chromatin can be stained by a basic dye. इसको बेसिक डाई से हम स्टेन कर सकते हैं. And this chromatin, it was named by Walther Fleming. Walther Fleming ने इसको नाम दिया as chromatin, and the chromatin, it can be stained with a basic dye, and this chromatin is present. ये न्यूक्लियस में कैसे प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स called chromatin reticulum. Right? So if you look at this diagram, this is your nucleus, and in the nucleus we have nucleoplasm. तो अंदर जो है ये मेरा न्यूक्लियोप्लाज्म है, और न्यूक्लियोप्लाज्म में ये मेरा क्रोमेटिन है. दिस इज माय क्रोमेटिन. ये मेरा जेनेटिक मटेरियल है, and this chromatin is present in the form of a network of thread-like structures. This network is called as the chromatin reticulum. So chromatin is present in the form of a network of these thread-like structures called the chromatin reticulum, right? The nucleus is bounded by nuclear envelope. Right? न्यूक्लियोप्लाज्म में आपको एक चीज़ और मिलेगी. न्यूक्लियोप्लाज्म में आपको you will see one or more rounded bodies which are called as nucleoli. So in the nucleoplasm you have the chromatin material plus you have nucleolus, right? And there can be one or more than one nucleoli. Per cell or per nucleus, राइट. सो यहाँ पर अगर आप डायग्राम देखें तो यहाँ पर हमने ये न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसके अंदर ये सारा क्रोमेटिन मटेरियल है, एंड देन यू कैन सी राउंडेड बॉडी लाइक स्ट्रक्चर. दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस. ये न्यूक्लियोलस है, and in the nucleus you can have one or more than one nucleoli, right? And then
and the nucleus is bounded by a nuclear envelope, and this nuclear envelope is double membraned. It is a double membrane structure. It has outer membrane and inner membrane, right? और दोनों membranes के बीच में there is a space which is called perinuclear space, and the nuclear envelope is not continuous, it is interrupted by nuclear pores, right? So if you look at this diagram of the nucleus, this is an interphase nucleus. When the cell is not dividing, the nucleus is said to be at interphase, right? So this is my nuclear envelope. ये मेरा nuclear envelope है. Nuclear envelope is a double membrane structure. This is called as outer membrane of nuclear envelope, and this is inner membrane of nuclear envelope. और दोनों के बीच में जो space है, this is called as perinuclear space, and the nuclear envelope is interrupted at nuclear pores, right? And through these nuclear pores, the substances can move from the cytoplasm to the nucleus and vice versa. So nuclear pores का जो significance है वो क्या है? Nuclear pores जो है, they allow the movement of substances. The movement of substances or the material between nucleus and cytoplasm, right? So this is the structure of the nucleus, and the outer membrane of the nuclear envelope is continuous with RER. ये हमारा RER है. This we have already talked about. The outer membrane is continuous with the endoplasmic reticulum. So if we look at the structure of the nucleus, it has a nuclear envelope, double membrane. Between the two membranes is a perinuclear space, and the nuclear envelope is not continuous, it is interrupted at nuclear pores, and the outer nuclear membrane is continuous with the rough endoplasmic reticulum, and in the nucleus is nucleoplasm. In the nucleoplasm is a chromatin, and the chromatin is in the form of chromatin reticulum, and in the nucleoplasm is also present a nucleolus. In the nucleus there can be one or more than one nucleoli, right? And this is the structure of the nucleus. And then the electron microscopy has revealed, अगर electron microscopy की बात करें, so electron microscopy, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से हमें पता चला है कि जो राइबोसोम के सब यूनिट्स हैं, राइबोसोम सब यूनिट्स आर सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियोलस, राइट? राइबोसोम्स जो है वो यहाँ न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं, और राइबोसोम हमें मालूम है किसका बना हुआ है. राइबोसोम इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स. इट इज मेड अप ऑफ राइबोसोमल RNA एंड इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, राइट? प्रोटीन्स कहाँ बनते हैं? प्रोटीन्स जो हैं वो बनते हैं, दे आर सिंथेसाइज्ड इन साइटोप्लाज्म.
ठीक है। और जो rRNA है ये कैसे बनता है? rRNA इज encoded by rRNA genes. It is encoded by rRNA genes. तो हमारे जीनोम के अंदर rRNA जीन्स हैं. जो RNA है वो हमेशा DNA से बनता है, राइट? तो rRNA के लिए भी rRNA जीन्स हैं. और ये जीन्स कहाँ पर प्रेजेंट है? ये जो जीन्स हैं, सम जीन्स आर प्रेजेंट, कुछ जीन्स जो हैं, सम जीन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोलस, right? And some genes are present in the other genomic material, in the other regions of genome. Or chromatin, right? So if you look at this diagram, जो राइबोसोम की यूनिट्स हैं वो यहाँ पर बनेंगे न्यूक्लियोलस में, और राइबोसोम जो है वो बना हुआ है rRNA का और प्रोटीन का. तो प्रोटीन्स तो साइटोप्लाज्म में बनेंगे, और साइटोप्लाज्म से प्रोटीन माइग्रेट करके कहाँ आएंगे? न्यूक्लियोलस में आएंगे. और जो rRNA है वो पार्टली इट इज सिंथेसाइज्ड बाय जीन्स जो यहाँ पर है, एंड पार्टली सिंथेसाइज्ड बाय द जीन्स विच इज प्रेजेंट इन दिस जीनोमिक मटेरियल और क्रोमेटिन मटेरियल. और उसके बाद जो rRNA यहाँ बनेगा इन द रेस्ट ऑफ द जीनोम, वो rRNA विल माइग्रेट टू द न्यूक्लियोलस. जो प्रोटीन्स हैं वो माइग्रेट करेंगे टू द न्यूक्लियोलस, और यहाँ पर भी rRNA बना है, and they all will assemble and they will form a ribosome unit. So ribosome की जो units हैं वो न्यूक्लियोलस में बनेंगे, right? और राइबोसोम जो है वो दो चीज़ों का बना है, प्रोटीन एंड राइबोसोमल RNA. प्रोटीन जो है वो साइटोप्लाज्म में बनता है, और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियर पोर से कहाँ आएगा? न्यूक्लियोलस में आएगा. और जो दूसरा कंपोनेंट है वो है rRNA. rRNA के लिए जो जीन्स हैं वो न्यूक्लियोलस में भी हैं, और ये जो बाकी रेस्ट ऑफ द ये क्रोमेटिन मटेरियल जो है, मेरा जीनोमिक मटेरियल जो है, यहाँ पर भी जीन्स हैं. सो राइबोसोमल RNA is partly synthesized by the genes in nucleolus, and it is partly synthesized by the genes which are present in the other regions of the genome. Other regions of genome मैंने which are present in this chromatin material. And then they all ribosomal RNA and the proteins जो बाहर से आए हैं, और जो जीनोमिक मटेरियल से राइबोसोमल RNA बना है, दे विल कन्वर्ज टूवर्ड्स न्यूक्लियोलस. और न्यूक्लियोलस में फिर जो है वो राइबोसोम की यूनिट्स बनेंगे, और राइबोसोम के यूनिट्स न्यूक्लियर पोर से बाहर आएंगे. सो राइबोसोम जो है वो न्यूक्लियोलस में बनता है. राइबोसोम के दो पार्ट्स हैं, राइबोसोमल RNA और प्रोटीन. प्रोटीन साइटोप्लाज्म में बनेंगे, और साइटोप्लाज्म से कहाँ आएंगे? न्यूक्लियोलस में आएंगे थ्रू न्यूक्लियर पोर, राइट? और जो राइबोसोमल RNA है वो राइबोसोमल जीन्स बनाएंगे, और जो जीन्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियोलस में भी प्रेजेंट है जीन्स, और जो बाकी का जो हमारा जो जीनोमिक मटेरियल है, जो हमारा मेन क्रोमेटिन मटेरियल है, वहाँ पर भी हैं, राइट? तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो rRNA है, it is partly synthesized by rRNA genes in nucleolus and partly by rRNA genes in
other regions of genome. राइट और उसके बाद जो आरआरएनए बनेगा, राइट, वो भी कहाँ जाएगा, न्यूक्लियोलस की तरफ जाएगा, और जो प्रोटीन्स हैं वो भी बाहर से कहाँ आएंगे, न्यूक्लियोलस में आएंगे, और जो आरआरएनए है वो भी सब कहाँ जाएगा, न्यूक्लियोलस की तरफ जाएगा. सो दोनों न्यूक्लियोलस में जाएंगे एंड देन न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम के सब यूनिट्स बनेंगे. यहाँ पर असेंबल होगा, असेंबली होगी ऑफ प्रोटीन एंड आरआरएनए, और यहाँ पर राइबोसोम्स बनेंगे. ठीक है, और फिर वो राइबोसोम के जो यूनिट्स हैं वो कहाँ आएंगे, थ्रू न्यूक्लियर पोर दे विल कम इनटू द साइटोप्लाज्म. सो जो सेल्स एक्टिव हैं इन प्रोटीन सिंथेसिस, with the cells which are active in protein synthesis, they have more nucleoli per cell or per nucleus, right? क्योंकि न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम्स बनते हैं, और राइबोसोम्स जो हैं दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस. तो जो प्रोटीन सिंथेसिस जहाँ बहुत एक्टिव होगी वहाँ पर राइबोसोम सिंथेसिस भी बहुत एक्टिव होगी, इसलिए वहाँ पर यू विल हैव मोर नंबर ऑफ nucleoli per nucleus, the cells which are actively engaged in the protein synthesis. So this is the structure of the nucleus, and the important is, ये concept आपको पता होना चाहिए कि जो राइबोसोम्स हैं वो कहाँ बनते हैं, न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं, और जो राइबोसोम्स हैं दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड आरआरएनए. प्रोटीन साइटोप्लाज्म में बनेगा, न्यूक्लियर पोर से अंदर आएगा, और आरएनए जो है वो आरआरएनए जीन से बनेगा. आरआरएनए जीन न्यूक्लियोलस में भी है, और ये बाकी जो रेस्ट ऑफ द जीनोम है, ये मेरा क्रोमेटिन मटेरियल इसके अंदर भी है. एंड देन आरआरएनए और जो प्रोटीन्स बाहर से आए हैं दे विल ऑल कन्वर्ज टू न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियोलस में दे विल असेंबल टू फॉर्म द राइबोसोम यूनिट्स, राइट. सो राइबोसोम इज मेड अप ऑफ आरआरएनए एंड प्रोटीन साइटोप्लाज्म में बनेंगे, पोर से न्यूक्लियोलस में आएंगे. और आरआरएनए के लिए आरआरएनए जीन्स हैं, कुछ जीन्स न्यूक्लियोलस में हैं, कुछ जीन्स जो है वो रेस्ट ऑफ द क्रोमेटिन में है या जीनोमिक मटेरियल में है. तो आरआरएनए जो है वो पार्टली बनेगा बाय आरआरएनए जीन्स इन न्यूक्लियोलस, एंड पार्टली बनेगा बाय द जीन्स विच आर देयर इन द अदर रीजन्स ऑफ द जीनोम. And then RNA will also move towards nucleolus, और प्रोटीन्स भी न्यूक्लियोलस की तरफ आएंगे जो बाहर से अंदर आए हैं थ्रू पोर. एंड देन RNA and the proteins will assemble in the nucleolus to form the ribosome subunits, और फिर जो राइबोसोम सबयूनिट्स हैं they will move to the cytoplasm. ठीक है, तो यहाँ पर मेरी असेंबली होगी. उसके बाद हम बात करते हैं माइक्रोबॉडीज की. माइक्रोबॉडीज जो हैं दीज आर स्मॉल बॉडीज, जैसे पर ऑक्सीजोम, राइट. पर ऑक्सीजोम जो है ये दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड, स्मॉल बॉडीज, और ये आपको एनिमल सेल्स में भी मिलती हैं. एनिमल सेल्स में आपको कहाँ मिलती हैं, एनिमल सेल्स में आपको मिलती हैं लिवर के सेल्स में और किडनी के सेल्स में. और इनका फंक्शन क्या है पेरोक्सिसोम का, दे आर इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ they are involved in the metabolism of hydrogen peroxide. That is why they are called as the peroxisomes. और यहाँ पर जो है enzymes हैं for
the metabolism of peroxisomes of peroxide, हाइड्रोजन peroxide. ठीक है, जैसे कि कैटालेस, then peroxidase, then amino acid oxidase, ये इसका रोल है एनिमल सेल्स में. और अगर प्लांट्स की बात करें तो पेरोक्सिसोम जो है वो प्लांट सेल्स में भी है. और प्लांट सेल्स में वो क्या करते हैं? प्लांट सेल्स में दे हेल्प इन फोटो रेस्पिरेशन. This we'll talk about in the chapter of photosynthesis. And in the peroxisomes, the oxidation of fatty acids take place. Oxidation of fatty acids, right, takes place in peroxisome. Then in plant cells, the peroxisomes, they are also involved in the synthesis of auxins and जेसोनिक एसिड. ये दोनों क्या है? ये प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स. ठीक है, तो ये जो पेरोक्सिसोम्स हैं इनका एनिमल सेल में क्या रोल है? एनिमल सेल में लिवर और किडनी में है. ठीक है, और जो प्लांट सेल्स हैं वहाँ पे इनका क्या रोल है? प्लांट सेल्स में दे हेल्प इन प्लांट सेल्स, दे हेल्प इन फोटो रेस्पिरेशन, दे आर इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स. प्लांट्स में जो ऑक्सीडेशन है फैटी एसिड्स का टू प्रोड्यूस एनर्जी, वो पेरोक्सिसोम्स में होता है. एंड दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ द प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स. ये जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हैं, ऑक्सिन्स हैं, जेसोनिक एसिड है, ये कहाँ बनते हैं? ये प्लांट के अंदर पेरोक्सिसोम्स में बनते हैं. राइट, देन पेरोक्सिसोम के बाद वी हैव another microbody which is called as glyoxysome. Glyoxysome is also membrane bound. और ये जो ग्लाइऑक्सिसोम है ये आपको कहाँ मिलता है? ये आपको मिलती है इन द जर्मिनेटिंग ऑयल यील्डिंग सीड्स. ऑयल यील्डिंग सीड्स में क्या आएंगे? जैसे कि ग्राउंडनट है, ग्राउंडनट सीड है, देन कैस्टर सीड है. ठीक है, सो द ऑयल यील्डिंग सीड्स हैं उनमें ग्लाइऑक्सिसोम्स होते हैं. एंड दे आर फॉर्म्ड ओनली एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन. दे आर फाउंड ओनली इन जर्मिनेटिंग ऑयल यील्डिंग सीड्स. राइट, तो जब सीड जर्मिनेट करता है उस समय ये बनते हैं. सो जर्मिनेशन इज अकम्पनीड with the formation of glyoxysome. राइट, और ग्लाइऑक्सिसोम में क्या होता है? ग्लाइऑक्सिसोम में फैट का डाइजेशन होगा. इन ग्लाइऑक्सिसोम एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन क्या होगा? ये यहाँ पे जो फूड स्टोर्ड है इट इज इन द फॉर्म ऑफ ऑयल. तो व्हेन द सीड्स विल जर्मिनेट द सोर्स ऑफ एनर्जी इज द फैट और द ऑयल विच इज स्टोर्ड हियर. सो ग्लाइऑक्सिसोम में क्या होगा? द ब्रेक डाउन ऑफ फैट. इन द ग्लाइऑक्सिसोम जो है दे हेल्प इन दी ब्रेक डाउन ऑफ फैट टू प्रोड्यूस एनर्जी.
at the time of germination. राइट, तो ग्लाइऑक्सिसोम जो है वो आपको जर्मिनेटिंग सीड्स में मिलेंगे विच आर ऑयल यील्डिंग, एंड एट द टाइम व्हेन द सीड इज जर्मिनेटिंग ग्लाइऑक्सिसोम्स बनते हैं. और जो ग्लाइऑक्सिसोम्स हैं दे हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ द ऑयल विच इज देयर stored in the seed, right? Because the source of energy there is the oil. So in the glyoxysomes, the fat is being digested and oxidized to produce energy, which is used at the time of germination, right? So this is all about the microbodies. So microbodies में peroxisomes जो हैं they are animal cells में भी हैं और plant cells में भी हैं. Animal cells में liver और kidney में है, and their main role is the metabolism of hydrogen peroxide, and that is why they have enzymes for metabolism. और plant cells में जो है peroxisomes जो है उनका क्या function है? They help in a process which is called photorespiration, and they are the site where the oxidation of fatty acids takes place. And then in the peroxisomes the plant growth hormones are synthesized like the auxins and jasonic acid. ये मेरे प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स हैं. और जो ग्लाइऑक्सिसोम्स हैं वो सब बनेंगे जर्मिनेटिंग सीड्स में, एंड दे विल हेल्प इन दी ब्रेक डाउन ऑफ द फैट टू प्रोड्यूस energy at the time of germination, right? I hope you must have